Good morning, children. I hope you all are well and missing the school very much, don't you? Yes, even we are also missing you a lot. Now let's continue with the chapter Animals in Their Surrounding. So, first of all, we will have a recap of part 1. So, what is habitat? Do you remember? Yes, habitat is a place where an animal lives, feed and reproduce. So we have done 5 groups of animals based on their habitat. What are these? Terrestrial habitat, aquatic habitat, arboreal habitat, aerial habitat, amphibious habitat. So now tell me, what is the covering outside your body called? It's not sweater, not t-shirt or any dress. It's your skin. Our body is covered with skin and hair are present over the skin. So human body has skin to cover the body. When we wear woolen clothes to escape from cold and we wear cotton clothes to protect us from heat of the sun and we wear raincoat or gum boots to protect us from rain. Now in the same way animals have different body coverings. So animals develop different body coverings to क्यों होते हैं एनिमल्स के डिफरेंट बॉडी कवरिंग? आपने देखा है ना, किसी के फर होते हैं, किसी के फेदर्स होते हैं, किसी की शेल होती है. क्यों होते हैं? ताकि टू अडेप्ट देयर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सकें, फॉर प्रोटेक्शन एंड टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर. So we have different body coverings of different animals. Now, different body coverings. We have a picture here of feathers, shell, skin, scales and fur. Now we will study about these in detail. First, feathers. Can you see around you? Which animal is having feathers? So, birds are having feathers. So, why do they have feathers? To fly. अगर उनके feathers नहीं होते तो can they fly? नहीं, वो fly नहीं कर सकते थे. And to keep their body warm. और जो ये feathers होते हैं वो उनकी body को गर्म भी रखती है. Example, parrot, peacock, sparrow, etc. Now, scales. Which of the animals are having scales? The body of the fish and reptiles are having scales. जैसे कि आपने पढ़ा था ना, reptiles कौन से होते हैं? Snakes, lizards, crocodiles and turtles are covered with scales. And the scales of the body of a fish are flexible, overlapping and waterproof. तो जो स्केल्स होते हैं फिश की बॉडी के, वो कैसे होते हैं? फ्लैक्सिबल, ओवरलैपिंग एंड वाटरप्रूफ. तभी तो उनकी बॉडी के अंदर पानी नहीं जा पाता, क्योंकि उनकी वाटरप्रूफ स्किन होती है. और ओवरलैपिंग होने के एंड फ्लेक्सिबल होने के कारण दे आर ईजिली मूव इन द वाटर. रेप्टाइल्स हैव स्केल्स फॉर प्रोटेक्शन, ताकि उनके ऊपर कोई भी हमला ना कर सके. और उनके स्केल्स आपने देखे ना, क्रोकोडाइल के कितने हार्ड स्केल्स होते हैं, तो कोई भी उसे ईजिली मार नहीं पाता. Now we have a picture here of fish. You can see the scales of the fish. And then we have the picture of reptiles. You can see the scales of the reptiles. Good. Now shell. आपने देखा है एक हार्ड शेल होती है. बहुत सारे आपने शंख से खेलते हो तो वो जो शंख होते हैं उनमें एक
छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स मीन्स एनिमल्स रहते हैं और वो अपने ऊपर ये कवरिंग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं वो अपने ऊपर ये कवरिंग? Bodies of some animals like snail, turtle and tortoise have hard shell. Shells protect them from enemies. क्योंकि उनको ताकि एनिमीज ना खा पाएं, क्योंकि अगर वो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं और अगर वो अपने ऊपर ये हार्ड कवरिंग डेवलप नहीं करेंगे तो उनको ईजिली कोई भी उनका एनिमी खा सकता है। एंड इट प्रिवेंट्स देयर बॉडी फ्रॉम ड्राइंग आउट ऑल्सो। और इनके ऊपर ये हार्ड शेल होती है तो इससे वो लोग उनमें उनका जो पानी होता है वो जल्दी से ड्राई अप नहीं होता है। Now, fur and wool. Wool, from where do we get the wool? Yes, I know you know the answer. We get the wool from sheep. तो sheep have wool to keep their body warm. sheep के ऊपर wool होती है जिससे वो अपने आप को गर्म रख सकती है, उसकी बॉडी गर्म रहती है। Polar bear and Arctic fox have thick fur to protect them from extreme cold. अब ये आपको पोलर बेयर और आर्कटिक फॉक्स दिखाई दे रही है, ये कहाँ पाए जाते हैं? एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेसेस पे, जहाँ पूरे साल बर्फ़ रहती है। तो इनके फर ही इनको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड? नाउ अदर बॉडी कवरिंग्स। Other body coverings, you can see the picture of a uniform here. Can you recognize it? This is army uniform. आर्मी की यूनिफॉर्म है। अब आप मुझे बता सकते हैं आर्मी की जो पर्सन होते हैं वो इस तरह की यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं? ताकि एनिमी उनको देख ना सके और वो ग्रास में अपने आप को हाइड कर लें और एनिमीज़ उनको देख ना सकें। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैमोफ्लेज। क्या कहते हैं? कैमोफ्लेज। सो कैमोफ्लेज इज़ टू ब्लेंड विद द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के साथ में ही अपने आप को बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग बना लेना ताकि एनिमी आपको पहचान ना सके। एंड एनिमल्स कलर, शेप और स्किन टेक्सचर हेल्प देम टू ब्लेंड विद द एनवायरनमेंट। जैसे कि आपको कैमलियन देखा है आपने, इट कैन चेंज इट कलर। तो वो कैसे वो अपना कलर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कर लेता है। इफ़ इट इज़ ऑन द लीफ इट विल बिकम green. It can change its color into brown also when it is on the soil or dry leaves, ताकि उसके एनिमी उसको देख ना पाए। उसका एनिमी कौन होता है? स्नेक। यस, यू आर राइट। स्नेक भी इसी तरीके से बहुत सारे कलर्स में मिलते हैं और वो अपने आप को एनिमी से बचाने के लिए अपने आप को हाइड कर लेते हैं। जैसे ग्रीन कलर के स्नेक्स मिलते हैं और स्टिक इंसेक्ट्स देखा है आपने? अभी वी विल हैव द पिक्चर ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स। तो आप देखिए यहाँ पर आपको लीफ इंसेक्ट दिखाई दे रहा है, तो ये बिल्कुल लीफ की तरह है, तो ये अपने आप को हाइड कर लेता है इनसाइड द लीव्स। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ स्नेक, इट इज़ ग्रीन इन कलर, तो वो लीव्स में अपने आप को हाइड कर लेता है। इसी तरीके से यू कैन सी द पिक्चर ऑफ लैपर्ड हियर। लैपर्ड कैन हाइड इटसेल्फ इनसाइड द ड्राई ग्रासेस। ठीक है, तो आपको समझ में आया? एंड एनिमल्स camouflage टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर एनिमीज, और इस तरीके से वो अपने आप को एनिमीज से बचा सकते हैं। नाउ we will study about the bees and ants. They have the waxy and water resistant outer covering that is called cuticles. आपने देखा है कभी भी चींटी जो है पानी में डूबती नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है जो कि वाटर रेजिस्टेंट होती है। मींस पानी के अंदर उसको कोई असर नहीं होता। आपके पास में वाटर रेजिस्टेंट वॉच होती है ना, जिसको आप पानी में भी डाल दो या फिर तो वो पानी में भी ख़राब नहीं होती। तो इसी तरीके से इनके पास में वैक्सी एंड वाटर रेजिस्टेंट आउटर कवरिंग होती है जिसको हम क्यूटिकल्स कहते हैं, जिससे पानी का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। नाउ यू कैन सी द पिक्चर ऑफ पॉर्क्यूपाइन। इट हैज़ शार्प नीडल लाइक स्पाइंस कॉल्ड क्विल्स। और जो इसके स्पाइंस होते हैं इनको हम क्विल्स बोलते हैं। ये पूरी इसकी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं एंड दे प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एनिमीज, क्योंकि इस कांटों के कारण कोई भी इसका एनिमी इसको खा नहीं सकता है. नाउ वी हैव द पिक्चर ऑफ एन आर्माडिलोस. तो आर्माडिलोस आर्म्स, आपने पुराने समय में देखा था जो सोल्जर्स होते थे वो एक बड़ी सी शील्ड पहनते थे आयरन की. इसी तरीके से ये आर्माडिलोस है जिसके पास में एक हार्ड आर्मर लाइक प्लेट होती है जो इसको एनिमीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. तो इसी के कारण इसको कोई भी एनिमल हार्म नहीं पहुंचा सकता और इसको ना ही खा सकता है. तो आज हमने डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स पढ़े हैं. नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड प्लीज रीड इट केयरफुली at your home. So thank you and bye bye, and we will continue in the next part.